जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड सेशन ऑफ आर्टिकल्स। पहले सेशन में हमने कुछ बेसिक रूल्स करे थे, डिफरेंसेस बिटवीन ए एंड एन एंड वेयर टू यूज ए एंड एन। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट रूल। Basically the next rule says a and an are not used before uncountable nouns. जितने हमारे uncountable nouns होते हैं जैसे time, money, air, dust, violence, strength, luggage, baggage, equipment, advice, information, we don't use a or an before them. But अगर वो definite होते हैं तो हम the जरूर use कर सकते हैं. Now look at some examples here. He gave me an advice. Because advice एक uncountable है, so an here would be incorrect. Correct sentence would be he gave me advice. Next, now look at this question. ये past year का है. The king was embarrassed to find evidences against his queen. Now evidence is uncountable. So always remember uncountable से पहले a और an use नहीं होगा और uncountable nouns plural form में नहीं होते because since you cannot count them, so how can you differentiate between countable और uncountable? तो वो basically countable form में हो ही नहीं सकते. So यहाँ पर error इस part में है. The correct answer would be evidence, not evidences. The next one, the thief gave police an important information. इसमें C part में error है. Again information is uncountable, so you cannot use article and. The correct sentence should have been the thief gave police an important piece of information. अब देखिए, आप कभी भी अपने अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना सकते हो बाय टेकिंग हेल्प ऑफ सम अदर नाउन. जैसे एडवाइस को, इंफॉर्मेशन को, इनको हम काउंटेबल नहीं करेंगे, प्लूरल नहीं करेंगे, इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे. बट यहाँ पर देखिए हमने पीस वर्ड यूज कर दिया. सो पीस कैन बी प्लूरल. अगर एक इंफॉर्मेशन दी है सो नाउ यू कैन से ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. दो इंफॉर्मेशन दी है सो यू कैन से ही गेव मी two pieces of information. So this is how your uncountable nouns work with article. And also remember uncountable nouns के बाद हम singular verb का use करते हैं. We never use plural verb. The next one. Now there are some idioms and phrases. ये बहुत अब article error में आने लग गए हैं. कई idioms phrases है जिनसे पहले article नहीं लगता. Examiner can give you. कहीं लगता है तो आपको वहां से omit करके दे देगा. So you will have to figure out कि आप को वहाँ आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बिकॉज ऐसे बहुत क्वेश्चंस एरर में आते हैं. इस साल भी एक क्वेश्चन आया था. नाउ डोंट मेक अ नॉइज. इट्स नॉट डोंट मेक नॉइज, इट्स ऑलवेज डोंट मेक अ नॉइज. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेज. व्हाई आई एम सेइंग इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल से पहले ए और एन नहीं आते. नॉइज इज अनकाउंटेबल बट स्टिल जब हमने उसको फ्रेज के फॉर्म में कन्वर्ट करा सो इट टेक्स आर्टिकल ए विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. The next one. Now a and an can be used before numbers like 100, 1000, lakh. Why? Because अगर आप एक idea दे रहे हो approximate, you are not saying I have 100 pens, I have 200 pens. No, you are giving an approximate idea कि मेरे पास कुछ almost या approximately 100 pens हैं. So there we can use a or an article like I have 100 pens. 100 pens का मतलब होता है nearby, approximately. He has 1000 rupees. I have bought a dozen eggs. So this का मतलब होता है approximately आपके पास 100 pens हैं या 100 rupees हैं या आपने dozen eggs लिए हैं. So such kind of questions can come in error form also and can also come in fill in the blanks. Then fractions, half, like 3 and a quarter meter. I want a 3 and a quarter meter wire basically. So quarter से पहले a आर्टिकल आ जाता है और half से पहले a आर्टिकल आ जाता है. जैसे 2 and a half बोलते हैं, 2 and a half. So half, 2 and a quarter. Half और quarter से पहले again we can use article a. The next point. Now these are some important sentences. Let us discuss these sentences. Difference between a and an when used for singular common noun basically. जब हम उनको singular common noun के लिए हम use करेंगे. All right. I hope this slide is clear. Let us start. This is dash place where he stays.
नाउ वेयर ही स्टेज ने इसको डेफिनेट बना दिया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा द, दिस इज द प्लेस वेयर ही स्टेज। नेक्स्ट, डैश मैन स्टैंडिंग नियर यू इज माई फ्रेंड, यहाँ पर अगेन नियर यू ने डेफिनेट कर दिया मैन को कि स्टैंडिंग नियर यू, इंफॉर्मेशन दे दी है, सो अगेन वी विल यूज आर्टिकल द। काइंडली रिटर्न डैश बुक, रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस लेना, वापस वही चीज लेंगे आप जो आपने दी होगी, सो जो भी वो बुक है अगेन वो डेफिनेट है, आपको पता है कौन सी बुक है, सो यू विल यूज आर्टिकल द। प्लीज स्विच ऑफ डैश लाइट, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, बिकॉज अंडरस्टूड अगर प्लूरल होगा तो भी लाइट्स होगा, द लाइट्स, द फैंस, और अगर एक लाइट है तो डेफिनेट है कि आप उसी लाइट की बात कर रहे हो, सो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट, नाउ वील स्टडी बेसिकली द कहाँ यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से, विच हैज कम क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम इन एग्जाम्स एज वेल। अगेन फिलअप्स या एरर किसी भी तरीके से आ सकता है, ये रूल आपको। द यूज होता है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले। हर एक एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे गुड, गुड पॉजिटिव डिग्री है, उसका कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा बेस्ट। तो जहां पर भी आप सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे, यू हैव टू यूज आर्टिकल द। लाइक ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, देखिए बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, तो हमने क्या लगा दिया द। इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, मोस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मेनी एंड मच, सो अगेन सुपरलेटिव डिग्री है तो हमने द लगा दिया। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले चाहे फिलअप्स में आए चाहे एरर में आए, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वी ऑलवेज यूज आर्टिकल द, ये द का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, कंपैरिजन। कई बार क्या होता है, हम एक नाउन का किसी प्रॉपर नाउन से कंपैरिजन करते हैं। जनरली देखिए हमारे नाम से पहले हम द नहीं लगाएंगे। क्या आप अपने नाम से पहले द लगाओगे? मेरा नाम रितिका मैम है, क्या मैं द रितिका लिखूंगी? नहीं, हम अपने नाम से पहले द नहीं लगाते, वी आर प्रॉपर नाउन्स। अब कई बार होता है कि एक नाउन चाहे वो कॉमन हो या प्रॉपर, उसका कंपैरिजन एक प्रॉपर नाउन से किया जाता है। तो जब ये कंपैरिजन होता है तब हमें जिस नाउन से कंपैरिजन हो रहा होता है उससे पहले द लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्रॉपर नाउन है। अब हमने क्या करा है, वैसे शेक्सपियर से पहले द रेलेवेंट नहीं है, बट बिकॉज हमने कालिदास का कंपैरिजन कर दिया है यहाँ पे शेक्सपियर से, क्योंकि कंपैरिजन हो गया है एक प्रॉपर नाउन से, इसलिए अब हमने शेक्सपियर से पहले द लगा दिया। नेक्स्ट, शी इज कंसिडर्ड डैश नाइटिंगेल ऑफ आवर कॉलेज फॉर हर मेलोडियस वॉइस। ये पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। अब देखिए नाइटिंगेल एक बर्ड है जो बहुत ही सुंदर सुरीला गाती है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल वॉइस नाइटिंगेल हैज। तो शी जो भी है कॉमन नाउन, उसका कंपैरिजन हमने कर दिया है नाइटिंगेल बर्ड से, नाइटिंगेल बीइंग अ प्रॉपर नाउन। तो क्योंकि अब हमने एक पर्सन का कंपैरिजन एक प्रॉपर नाउन से कर दिया नाइटिंगेल से पहले, तो अब नाइटिंगेल से पहले हमें क्या लगाना होगा? द। शी इज कंसिडर्ड द नाइटिंगेल ऑफ आवर कॉलेज। सो रिमेंबर दिस रूल, अगर कहीं पर भी आप एक नाउन का कंपैरिजन एक प्रॉपर नाउन से कर रहे हो तब आप उस प्रॉपर नाउन से पहले द लगा सकते हो, अदरवाइज मोस्टली बिफोर द नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस वी डोंट यूज द। यस, कुछ प्रॉपर नाउन से पहले लगता है, जैसे सन, मून, अर्थ, हेवनली बॉडीज हो गए, डायरेक्शंस हो गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनसे पहले हम प्रॉपर नाउन्स, ये प्रॉपर नाउन्स हैं, इनसे पहले हम द लगाते हैं। बट बिफोर नेम्स ऑफ पीपल वी डोंट यूज, बिफोर नेम्स ऑफ प्लेसेस, प्लेसेस में हम यूनाइटेड वर्ड से पहले लगाते हैं, इसलिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड से पहले लग सकता है, बट आप द इंडिया, द पाकिस्तान, द चाइना नहीं बोल सकते, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अभी मैंने जब ए और आर आर्टिकल आपको बताया था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि अगर आर्टिकल एक जगह होता है मतलब वो एक पर्सन को रेफर कर रहा है, और अगर आर्टिकल दो अलग अलग नाउन से एडजेक्टिव से पहले होता है मतलब वो दो अलग अलग चीजों या पीपल को रेफर कर रहा है। इस सेंटेंस में आप देखिए, द चेयरमैन एंड प्रिंसिपल, चेयरमैन और प्रिंसिपल यहाँ एक ही पर्सन है। कैसे पता है हमें? क्योंकि आर्टिकल एक जगह यूज हुआ है चेयरमैन से पहले, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब भी देखिए क्या कौन सा वर्ब फॉलो हुआ है?
सिंगुलर, आर्टिकल से हमें पता चल गया कि एक पर्सन है, सो वी हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, द चेयरमैन एंड द प्रिंसिपल आर हियर। यहाँ पर आप देखिए चेयरमैन से पहले भी द है और प्रिंसिपल से पहले भी द है, तो जब दो नाउन से पहले अलग अलग आर्टिकल आएगा तो वो दो अलग अलग लोग हैं। सेकेंड सेंटेंस में प्रिंसिपल अलग पर्सन है और चेयरमैन अलग पर्सन है, तो जब प्लूरल हो गया, दो अलग अलग लोग हैं, तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। सो हेंस हमने आर यूज करा है, मीन्स इट रेफर्स टू टू पीपल। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी आर्टिकल में एरर मत दिखाइएगा, वर्ब एरर दिखाइए। सपोज जैसे सेंटेंस है द चेयरमैन एंड प्रिंसिपल इज हियर, राइट। कई बार ये भी स्टूडेंट्स को क्लिक कर सकता है कि लेट्स से अगर द प्रिंसिपल कर देते हैं, वर्ब प्लूरल कर देते हैं, यू डोंट हैव टू मेक सो मेनी चेंजेस। आपको आर्टिकल के अकॉर्डिंग, अगर आर्टिकल एक जगह है तो आप वर्ब को गलत मानेंगे, अगर आर्टिकल दो जगह है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए और सिंगुलर है तो अगेन आप वर्ब को गलत मानेंगे। अनटिल एंड अनलेस प्रोनाउन है सपोर्ट करने के लिए। अगर आपका वर्ब और आपका प्रोनाउन एक जैसे हैं, सपोज वर्ब भी सिंगुलर है, प्रोनाउन भी सिंगुलर है और आर्टिकल दो अलग अलग लगे, तब आर्टिकल का एरर आ सकता है, क्योंकि वर्ब और प्रोनाउन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तब होगा आपका आर्टिकल का एरर कि आर्टिकल दो अलग अलग नहीं आने चाहिए थे, एक ही पर्सन है, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर लगा है और प्रोनाउन भी। सो ये चीजें आपको इस रूल में देखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोनाउन नहीं है या नाउन या प्रोनाउन एक दूसरे को कोई ऐसा रिलेवेंटली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आर्टिकल का एरर ना दिखाते हुए वर्ब का एरर दिखाना है आपने। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम कोई कॉमन नाउन लेते हैं रिलेटिंग टू अ प्लेस, तो कई बार हम कहते हैं आई गो टू द इंस्टीट्यूट, कई बार हम कहते हैं आई गो टू इंस्टीट्यूट, राइट। तो दोनों में कुछ तो फर्क होगा, या तो दोनों में से कोई एक गलत है, बट इस केस में दोनों सही हैं। तो इनका डिफरेंस क्या है, लेट अस स्टडी दैट। आप किसी भी कॉमन नाउन प्लेस से पहले द तब लगाओगे अगर आप उस जगह पर जा रहे हो फॉर सम एक्स्ट्रा वर्क। आप उस, सपोज आप किसी इंस्टीट्यूट जा रहे हो, आप वहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, आप वहाँ टीचर नहीं हो, आप वहाँ का हिस्सा ही नहीं हो बेसिकली उस प्लेस का, आप तो सिर्फ किसी एक्स्ट्रा वर्क से कुछ देने जा रहे हो, किसी को मिलने जा रहे हो या इंक्वायरी के लिए जा रहे हो, तब आप उस कॉमन नाउन इंस्टीट्यूट से पहले द लगा सकते हो। बट अगर आप उस इंस्टीट्यूट का एक पार्ट हो, आप वहाँ पे स्टूडेंट हो, आपने एडमिशन लिया है, या आप वहाँ पे एम्प्लॉयड हो, टीचर हो, दिस मीन्स यू आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट प्लेस, यू आर सपोज टू बी एट दैट प्लेस, तब आप उस सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले द नहीं लगाओगे। ये जनरली वर्ब्स लाइक गो, कम, विजिट, इन वर्ब्स के साथ यूज होता है, क्योंकि ये ज्यादातर जाने आने के लिए यूज होता है टू अ कॉमन प्लेस। सो रिमेंबर, अगर आप किसी कॉमन प्लेस पे जाते हो या जा रहे हो बिकॉज आप उसका हिस्सा हो, तब आप द नहीं लगाएंगे, कॉमन सिंगुलर नाउन होना चाहिए। और अगर आप उस जगह का हिस्सा नहीं हो, आप सब एक्स्ट्रा वर्क से जा रहे हो, तब आप द लगा सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। आई गो टू कॉलेज एवरी डे, एवरी डे रोज जाते हो, तो अंडरस्टूड है कॉलेज में पढ़ने ही जा रहे होंगे, राइट, यू नॉट गोइंग फॉर सम एनी अदर एक्शन। सो सेंटेंस डिफाइंस दैट यू आर अ स्टूडेंट एंड यू स्टडी देयर, तो इसलिए कॉलेज से पहले हमने यहाँ पर द नहीं लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस, I went to the college to pay my brother's fee. To pay my brother's fee. This is an extra work. आप उस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो, आपका भाई है, आप तो सिर्फ आउटसाइडर हो जो वहां फी पे करने जा रहे हो, तो अब आपने कॉलेज से पहले द लगाया है। नेक्स्ट, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज फ्रूट्स। मार्केट में क्या काम होता है, वी बाय क्लोथ्स, वी बाय फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्टफ। सो आप बेसिकली परचेजिंग के लिए जा रहे हो मार्केट, सो रिलेट करता है, मार्केट इज मेंट फॉर परचेजिंग, सो इसलिए हमने यहाँ पे मार्केट से पहले द नहीं लगाया है। नेक्स्ट, आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड एट द मार्केट। फ्रेंड की वेट कर रहे थे आप मार्केट में, मतलब आप मार्केट में कुछ बाय करने नहीं गए हो, तो आप वहाँ मेन पर्पज से नहीं गए हो, आप सम एक्स्ट्रा वर्क से गए हो। सो जब आप एक्स्ट्रा वर्क से गए तो आपने मार्केट से पहले क्या लगा दिया, द। जैसे चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, अंडरस्टूड है पढ़ने ही जाना है। क्रिमिनल वॉज सेंट टू प्रिजन, क्रिमिनल की जगह प्रिजन में ही है, तो प्रिजन से पहले वहां द लगाने की जरूरत नहीं है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, सो वील बी टेकिंग ऑन with the next session soon, तो उसमें आपको we'll cover up the remaining rules. Meanwhile, please go through these sessions, session 1 and session 2. Thank you.